Good afternoon to all of you. Respected Principal Ma'am, Dr. Jasleen Kaurji, Dr. Karan, Dr. Suman and Dr. Aman. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਯੂ ਆਲਸੋ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੀਮ ਫॉर selecting such a beautiful and relevant topic. The unsung heroes and their contribution in the freedom struggle of India. क्योंकि देखो हुन तक एक जो रवायत बनी हुई सी since till the last few years or decades I would say, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨੋਨ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨੋਨ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ जो अपना ये पूरा एक फ्रीडम स्ट्रगल है, एक संघर्ष है आज़ादी का, उन्होंने देखते हैं पर इस विच बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर इस तरह के हीरोज़ हैं who many times they were living next door to us और बहुत नज़दीक सी साडे बट उन्होंने असी जानिया नहीं पछाणिया नहीं तो उन्होंने असी गल नहीं की तो जिसके करके साडी हिस्ट्री भी जो है वो अधूरी रह गई है ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਨ ਵੀ ਟੀਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ तो ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ peasant movement in Pepsu and a case study of Kishangarh village ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ peasant movement ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਜੀਂਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਲਸੀਆਂ 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ जिसनों की पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन कहा जाता है और पेप्सू कह के जाना जाता है ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅਣਗੋਲੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿਸਟਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਲ 1947 these were the only princely states or some of those princely states which happened to remain independent and managed to create their autonomous or individual autonomous rule till that time तो जो महाराजा रंजीत सिंह का भी लाहौर राज है वो 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ it is annexed to the colonial rule and that's why we call that Punjab as colonial Punjab तो जो पंजाब है present after partition ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ colonial ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ और जो एक जनरल सानू हिस्ट्री मिलती है वो कॉलोनियल पंजाब की मिलती है इन्हां रियासतां नूं उहदे विच इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज ऑब्वियसली हिस्ट्री इज बीइंग रिटन फ्रॉम अ कॉलोनियल लेंस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ
और ये जो एरियाज ने ये दे आर काइंड ऑफ इग्नोर्ड और मिस्ड। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी होया है इस दौरान ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ चंगा भी है कुछ माड़ा भी है, पर ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ है ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ जो अपनी नेक्स्ट सोसाइटी है या साडे इस पर्टिकुलर रीजन ਦੇ ਵੀ जो सोशो इकोनॉमिक इशूज है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो it is interesting to see that कि जो यूनियन बनता है 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ it is one of the smallest union। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 6 ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ it was the smallest union or but it was the first state or the union you would say rather it would be suitable to call it a state जो कि Sikh majority states। And it has always been a dream of the Sikh representatives or Sikh leaders, and in fact it was a fond dream of Maharaja Ranjit Singh also to rule over a state someday which is having the majority of Sikh population, which could never materialize। But when in 1948 PEPSU is being inaugurated, उस समय पे पेप्सू में मान हासिल होता है कि ये पहला सिख मेजोरिटी जो स्टेट है या यूनियन है उस तरह इमर्ज करता है। और इनफैक्ट सरदार पटेल जो उस समय इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स के विच और उस समय काफ़ी लीडिंग रोल ही इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड ही इज़ प्लेइंग अ वेरी लीडिंग रोल, तो वो भी इनू सिख होमलैंड कह के बुलाते हैं। और इस तो बाद एक नवा दौर शुरू होता है जिहदे विच कि आपां देखते हाँ कि आने वाले समय दे विच देयर इज़ अ वॉइस, देयर इज़ अ डिमांड फॉर अ सैपरेट सिख स्टेट, तो वो भी पेप्सू के नाल जोड़ के उन्होंने किते ना किते देखा जाता है। मास्टर तारा सिंह भी ये सोचते हैं कि अगर ये पेप्सू के नाल ही असीं कुछ होर सिख मेजोरिटी रीजनस जो है उन्होंने रला लीए तो असीं एक पंजाबी सूबा जिहदे विच कि ज़्यादा मात्रा दे विच सिख होण और सिख स्टेट होवे उन्होंने असीं मटीरियलाइज कर सकते हाँ। Then again these princely states they are unique in many senses which is interesting। एक तो देखो जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ as a leader we have many writings about the contributions of Sardar Patel, about the contribution of Nehru and their vision about the United India, and then we have many writings about many other people also like V.P. Menon writes in the integration, the story of the integration of states। But interestingly जो पटियाला का महाराजा है उस टाइम महाराजा यादविंदर सिंह वो उस समय चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चांसलर है and he is one of the first princes to sign the instrument of accession and to accept being a part of Indian Union, because ये जो princes हैं इन्होंने choice दी गई थी कि तुसी पाकिस्तान का हिस्सा बनना है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। और उस समय ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, और स्पेशली ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। that would have been a major concern for security। उस समय पे जो महाराजा पटियाला है वो accompanied by his other fellow states towards this side of eastern Punjab, they come out to be the first states to sign the instrument of accession, and he plays a very dominating and a very positive role in convincing other princes also to become a part of the Indian Union। और उस तो बाद ही ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ not just in the political life or in the as a political ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਆਸਤ और इट इज समथिंग being ruled by a king, तो वो जो रूल होएगा वो अपने आप ऑटोनोमस होएगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ वन मैनस रूल, और इतों के लोग जो हैं उन्होंने उस तरह दी सहूलतां हासिल नहीं होंगियां जो पछड़ा हुआ इलाका होएगा। पर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द सोर्सेस इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जदों सानू आज़ादी मिलती है तो जो एवरेज लिटरेसी रेट है इंडिया का वो है 10% के करीब 1951 का जो साडा पहला सेंसस होता है। But then the average literacy rate within PEPSU is much higher, which is something interesting to observe when I was going through the sources।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। और वो जो स्कूल्स और कॉलेजेस खुलवाए गए हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ they have got very eminent hospitals established, Lady Hardinge Hospital and then ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ देयर आर ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲਸ। और तुसीं देखोगे कि इत्थे जिन्ने भी वड्डे इंस्टीट्यूशनस अदारे हैगे ने अगर तुसीं उन्हां दी हिस्ट्री ट्रेस करो किते ना किते वो रियासतां दे नाल जाके जुड़दी है कि हु गेव पेट्रोनेज टू देम। ते ओहदे विच मैं बहुत डीप नहीं जावांगी बट येस दे डिड सर्टेनली प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड नोटवर्दी रोल जिन्हों की समझण दी जरूरत है और जिहदे बारे घट लिखिया गया है मैनूं लगदा है। और जिवें मैम ने बड़ी वधिया गल पॉइंट आउट कीती कि अगर ਅਸੀਂ किसी भी इंडिविजुअल की गल करते हैं तो जरूरी नहीं कि उस सब चंगियां ही गल्लां होणगियां एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट दैट यू नो बीइंग ह्यूमन देयर कैन बी नेगेटिव साइड टू अ ह्यूमन आल्सो। ते इन फैक्ट जदों ਅਸੀਂ रेनेसां पीरियड ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ कि a man can have some kind of follies also and let's accept those follies because at the end of the day he is a human, he is not God and those follies also are वो जो आज सानू follies लगदियां ने हो सकता है कल दे दौर ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। So that is a part that can be a part of your overall evolution also, your social evolution। ਤੇ अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀਜ਼ हैं इसਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਸਟ ਹਾਇਰਾਰਕੀਜ਼ हैं या क्लास हायरार्कीज ने या फिर अगर ਅਸੀਂ पेजेंट्स ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो within peasants also there is a very sharp hierarchy which is being established और ਉੱਥੇ जो princes हैं उस तरह ना freedom नहीं दे रहे हैं अपनी प्रजा ਨੂੰ। ਉਹ media now they are not liberal with media, it is being controlled, they are not giving those kind of liberties to their peasants या जो किसान ਹਨ ਉਹ ਰੀਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So there are many issues क्योंकि जो मेरा पेपर है वो मैं specifically I wanted to take up a case study, so I specifically took up a case study of peasant movement। तो ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ कि चाहे ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ they have contributed to some extent but ਉਹਨਾਂ ਦਾ there are some detriments because they have to survive at the end of the day and whatever political system they are into it they want to protect it also। तो उस करके बहुत ज़्यादा लिबर्टीज दे नहीं सकते और ये वो समा है जो भारत आज़ाद हो रहा है और उन्होंने अपना एक सर्वाइवल क्राइसिस भी है कि एज अ प्रिंसली स्टेट असी कंटिन्यू कर पावांगे कि नहीं कर पावांगे। और जो सानू इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी ब्रिटिश दे राज के समय ते मिली हुई सी कि ये जो भारत आज़ाद हो जाएगा कि ये ऑटोनॉमी सानू बाद विच भी इदां ही रहेगी और उससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है we see post 1920s it is sharpened और प्रिंसेस बहुत ज़्यादा अनसर्टन हैं, एप्रीहेंसिव हैं और वो there are in the round table conferences and there are various meetings और chamber of princes ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ स्ट्रगल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और जो रियासतां विच भी लोग बैठे ने जो आम मासेस हैं they also want to be free but उन्हां दा जो स्ट्रगल है ना that is manifold, that is not just at one level। ये भी सानू समझने की लोड़ है क्योंकि वो ना सिर्फ इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं वो एक फ्यूडल ऑर्डर के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो फ्यूडल ऑर्डर की है जो ये प्रिंसली रूल है that is the feudal order। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ और फ्यूडलिज्म की जो एक डिबेट होती है whenever we study feudalism there is a debate of transition from feudalism to
कैपिटलिज्म और द मॉडर्न फेज। और वो डिबेट अपने आप च नाल मैं वो भी गल्लां डिस्कस करांगी क्योंकि मैंने लगता है कि ये चीज़ां तुहाडे सिलेबस च नहीं तो तुसीं ज़्यादा रिलेट भी कर पाओगे इन्हां गल्लां नाल। ते जदों भी असीं डिबेट करते हाँ कि मॉडर्निटी या मॉडर्निज्म कदों आया, ते मॉडर्निज्म दे नाल असीं कंपैरिजन करते हैं फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन का या फ्यूडल सोसाइटी का। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं सीगा कि we slept on 31st of December this year and it was a feudal period, and the moment we got up on 1st of January it was we found ourselves in a modern period or in a comparative pre-capitalist period। तो ऐसा नहीं सी, it was a very slow change or evolution। और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ और सोशल स्ट्रक्चर्स ने उन्होंने नाल वो चीज़ संबंधित है कि वो चेंज किते 15वीं 16वीं सदी में आ रहा है। जे असीं यूरोप की गल करिए या फिर असीं यूरोप के स्पेसिफिकली अगर असीं इटली की गल करिए रेनेसां दे आउण दे नाल, और किते भारत वर्गिया जगहां ते उस चेंज नूं कहा जाता है कि ये 18वीं सदी च आउंदा है। और ਉਹਦਾ नैरेटिव की दिता जाता है कि the moment Britishers had a victory, the first political victory, military victory with the Battle of Plassey in 1757, we ushered in a modern period, and before that you were witnessing a dark period which was the Mughal era, और उन्होंने वो Muslim period कह के define करते हैं। So again it is a colonial interpretation which we need to understand and we need to reinterpret it। I would reject that interpretation also, but still because we are talking about the switchover, ते हुणे जो रियासतां ने इत्थे 1947 च भी मैं गल कर रही हाँ कि जो सोसाइटी है या जो आम आदमी है उसकी जो स्ट्रगल है वो दो लेवल्स पे है। एक वो स्ट्रगल कर रहा है फ्यूडल ऑर्डर के अगेंस्ट और दूसरा वो स्ट्रगल कर रहा है इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि फ्यूडल ऑर्डर अपने आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ने जो कि उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी उन्होंने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ वेरी मच देयर इन 20th सेंचुरी ऑल्सो। एंड अगेन चाहे असी ये कह दें हाँ कि यूरोप के विच जो मॉडर्न पीरियड है वो जल्दी आ गया, ऐसा नहीं है। यूरोप के विच भी अगर तुसी 18वीं सदी च भी पढ़ोगे या 19वीं सदी का भी पढ़ोगे, अगर तुसी उन्हें समझने की कोशिश करोगे तो उत्थे भी फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डीप रूटेड हैं और उत्थे भी वो स्ट्रगल चल रहा है। तो ये जो पेजेंट्स हैं ये एक तो इन्हां रियासतां तो आज़ाद होना चाहते हैं और दूसरा वो कॉलोनियल रूल तो भी आज़ाद होना चाहते हैं, एंड दे वांट टू लिव इन अ फ्री नेशन विच इज़ इंडिया। तो वो रियासतां तो क्यों आज़ाद होना चाहते हैं? any input कि क्यों उन्होंने लगता है कि असी ये प्रिंसली स्टेट्स के विच नहीं रहना? क्योंकि उन्होंने किते ना किते एक कंपैरिजन है, उन्होंने लगता है कि जो कॉलोनियल राज है कि उत्थे कुछ हद तक जो स्ट्रगल हो रही है उहदे नाल कुछ हद तक लिबर्टीज हौली हौली ऑटोनोमस या पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स जो है वो इलेक्ट होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पर क्योंकि इत्थे इट इज मोर ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम और राजे नहीं चाहते कि कोई भी प्रोग्रेसिव चेंज साडी सोसाइटी नूं टच भी करे, क्योंकि वो उन्हां दे राज दे लिए भी चैलेंज होएगा। इस करके वो कुछ भी इंश्योर करते हैं कि इदां दा कोई चेंज साडा जो ये दायरा है इहदे विच ना आ सके, ठीक। और उस तो बाद बिकॉज दे आर पेजेंट्स, तो उन्हां कोल वो जमीन नूं वाह रहे हैं, पर वो जमीन दे प्रोपराइटरी राइट्स या मलकीयत जो है उन्हां कोल नहीं है। और वो मलकीयत किहदे कोल है? वो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, जिन्होंने इस इलाके विच कॉमनली बिस्वेदार कहा जाता सी, उन्हां कोल है राइट्स। तो बिस्वेदार कौन है? वो बिस्वेदार ज़्यादातर इन्हां दी जो रियासतां ने या जो प्रिंसेस हैं इन्हां दी फैमिलीज तो, इन्हां दी एक्सटेंडेड फैमिलीज तो ने, या फिर इन्हां दे फ्रेंड्स, इन्हां दे जिहड़ा फर्स्ट सर्कल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडिंग पीपल इन द सोसाइटी जिन्होंने कि ये प्रिंस कोई फेवर एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर उन्होंने अपने लॉयल रखना चाहते हैं, वो लोग ने जिहड़े वो बड़े जमींदार या रिश्तेदार हैं, एंड दीज आर ऑल द फ्यूडल पिलर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो अगर राजा उन्होंने जमींदार को सपोर्ट करेगा तो जमींदार राजे को सपोर्ट करेगा और वो दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इट्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। और इस करके भी जो आम प्रजा है या जो किसान है
उन्होंने लगता है कि जदों तक इत्थे रियासतां हन या इन्हां दा रियासतां दा राज है उदों तक असी फ्री नहीं हो सकते हाँ, और उदों तक जो भी साडियां लाइबिलिटीज़ हैं या जो भी साडा शोषण किया जा रहा है, साडे तो टैक्सेस ले जा रहे हैं, बताई लिया जा रहा है या फिर होर जो भी सानू मलकीयत नहीं दी जा रही, और किसी भी टाइम पे जो टेनेंट्स हैं उन्होंने किसी भी टाइम पे टेनेंसी तो निकाल दिता जाता है बिना किसी रीजन दे। हो सकता है कि 2 पुश्तां 3 पुश्तां तो उस लैंड ते वाही कर रहे हो, बट उन्होंने बिना कोई रीजन दिते उतों निकाल दिता जाएगा। तो वो उन्होंने ग्रीवेंसेस है जिहदे करके कि वो इस पूरी स्ट्रगल तो बाहर आना चाहते हैं। और असी देखते हैं कि ना रियासतां दे विच भी और ओवरऑल इंडिया दे विच भी जोड़ा ये मूवमेंट है पेजेंट मूवमेंट ये 1901 तो बाद इंटेंसीफाई होता है और तेज हो जाता है एंड इट इज मोर ऑफ अ पॉपुलर मूवमेंट which we should understand because it's a movement which is coming also from the grassroots level. And the beauty of this movement is कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ agrarian community या classes ही देखोगे तो almost agrarian class ਦਾ ਜਿਹੜਾ हर दायरा है या हर जो रुतबा है वो इससे किसी ना किसी level पे participate कर रहा है क्योंकि सब दे कुछ ना कुछ stakes हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। But yes, many of the peasants from the grassroots level are also participating, which is very important to know when we are talking about the peasant movement. 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ there are some communities or there are some castes ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ agricultural castes ਨੇ, and again there are some castes which are not agricultural, non-agricultural। तो हुण जो एग्रीकल्चरल कास्ट ने उन्हां कोल जो ज़मीन है उहदी मलकीयत दा राइट है वो ज़मीन दे मालक हो सकते हैं, पर वो सारियां कास्ट जिहड़ियां कि नॉन एग्रीकल्चर ने वो सारियां कास्ट जिहड़ियां ने वो ज़मीन दी मलकीयत नहीं ले सकते। इहदे नाल की होया कि बड़े सारे जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैं या फिर जो लीज ते ने या फिर जो किसी भी तरह की जिन्हां कोल हजे तक मलकीयत नहीं है लैंड वो हुण उस ज़मीन के मालक नहीं बन सकते। तो इट वाज अ बिग शॉक which brought in that peasant movement and intensified that peasant movement within Punjab and in many other areas also। ते हुण पेप्सो दे विच की है कि एक फरमाने शाही जो है वो लागू किया जाता है जिहदे विच की जो राजा है पटियाला दा यादविंद्र सिंह वो ये कहता है कि मैं ट्राई करता हाँ टू ब्रिंग इन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज। ते तुसी ये करो कि जिन्ना टोटल लैंड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तुसी 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है कि इस दे विच तुसी की करो कि 1/3 लैंड जो है वो लैंड ओनर को रह जाए, लैंडलॉर्ड को रह जाए, ते 2/3 जो है जो ਉਹਦੀ टिलिंग कर रहा है जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट है ਉਹਦੇ ਕੋਲ रह जाए। तो पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ जो टेनेंट्स हैं खुश नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि सारा लैंड ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ बिकॉज वो पुश्तां तो पिछले 50 साल तो या 100 साल तो हर एक का अलग-अलग टर्म ऑफ एग्रीमेंट है उसकी वाही कर रहे हैं तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। मैंने सम अप करने ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ मैं जल्दी से उसमें सम अप करांगी। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that this turns into more of a violent movement which is more interesting। It is a radical, it turns into a radical, a violent and a very revolutionary movement जो कि जिसका एग्जाम्पल पूरे इंडिया में दिता जाता है। और पेप्सो के कई सारे पिंड जिहड़े कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जिथे मूवमेंट चलता रहता है क्योंकि उन्होंने लगता है कि उन्होंने जो इशूज़ हैं वो एड्रैस नहीं हुए हैं। तो उन्होंने जो एक पिंड है किशनगढ़ जो कि प्रेजेंट बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के विच आउंदा है। तो उत्थे इस तरह होया सी कि इस सब पिंड वालियां ने मिलकर नारा लगाया कि असी ना तो किसी को कोई बताई देवांगे भी एक पैसा भी असी बताई विच नहीं देवांगे टैक्स के रूप में, और ना ही असी अपना जमीन का 1 इंच भी किसी लैंडलॉर्ड नूं देवांगे। तो इत्थों ये स्ट्रगल जिहड़ी है इन्हां दी शुरू हुई सी जिहदे विच कि इन्हां दे जो उस टाइम जो लीडर सीगे वो सीगे कॉमरेड धर्म सिंह फक्कर ते जहांगीर सिंह जोगा ते इस तो इलावा होर बहुत सारे जो लोकल इन्हां दे लीडर सी वो सब इन्हां नूं लीड कर रहे सी इस पूरे पिंड नूं। और इन्हां दा जो विस्वेदार सी 2 विस्वेदार सी इस पिंड विच, एक सी भगवान सिंह और सियासत सिंह, और ये दोनों ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी सी। सो हियर इन दैट एलिमेंट कम्स जिथे जो जमींदार है
ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਦੇ ਆਰ ਹੈਂਡਸ ਇਨ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। तो इस तरह ਨਾਲ वो जो है एकदम ਨਾਲ पुलिस कॉल कर लेंदे ने and there are almost 100 policemen जो कि उस पिंड विच घेरा पा लेंदे and how the whole village struggles to for its rights, especially the land rights। और फिर बाहरों भी जो कॉमरेड्स ने वो 5000 बंदियां दी पेजेंट्स दी टीम लेके आ जाते हैं इन्होंने सपोर्ट करने। और एक तरफ जो पिंड है उन्होंने पुलिस ने घेरा पाया हुआ है और उसके आउटर सर्कल विच जो 5000 पेजेंट्स हैं उस पुलिस नु तीनों पासों घेर लेंदे ने and it intensifies the struggle। This becomes a headline for days and months to come, not within India but in the international news also। और इस जड़ा एक एग्जाम्पलरी मूवमेंट है ਇਹਦਾ एग्जाम्पल थ्रू आउट दिता जाता है। नाउ यू नो इट इज नॉट बीइंग डन जस्टिस विद क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। और अगर क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स फ्रेंड थे सब बैठे ने तो बस मैं इतने ही कह के कंक्लूड करना चाहूँगी कि एक पॉपुलर मूवमेंट इस करके भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यू नो इट ब्रिंग्स इन ऑल टुगेदर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री जिथे कि असी पॉपुलर मासेस का ग्रास रूट लेवल के पीपल का रोल देखते हैं और जो नवियां आइडियोलॉजीज आती हैं हिस्ट्री को समझने के लिए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी सबऑल्टर्न हिस्ट्री उन्होंने के नज़रिए तो असी इन्हों जानने की इन्हों का जो रोल है हिस्ट्री के डिसाइसिव रोल है उन्होंने समझने की कोशिश करते हैं। और इनू समझने के लिए साढ़े को जो तथ्य ने या जो सोर्सेज हैं वो भी रूडीमेंट्री या ऑर्थोडॉक्स या कन्वेंशनल सोर्सेज साढ़े काम नहीं आते क्योंकि वो सोर्सेज भी कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स नू कुछ पर्टिकुलर लीडर्स नू या जो रूलिंग पार्टीज हैं उन्होंने ध्यान च रख के बनाए जाते हैं। सो वी नीड टू रीइंटरप्रेट दोज सोर्सेज एंड वी नीड टू फाइंड न्यू सोर्सेज which are again you know you will find them amongst the popular people when you go down to the masses। और जो popular sources हैं वो सानू एक हिस्ट्री समझने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रूपम तुसी बड़ी डिटेल दे विच किसानी अंदोलन का राष्ट्रीय अंदोलन के उत्ते प्रभाव बारे चर्चा की। हुण असीं छोटी जी टी ब्रेक लवांगे उस तो बाद दोबारा हॉल विच इकट्ठे मैम